Hello students, today we are going to discuss strictly increasing and strictly decreasing functions. Strictly increasing function. अब ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, मूव अपवर्ड्स. नाउ टेक 2 पॉइंट्स ऑन दिस कर्व px1, fx1 and qx2, fx2. अब now draw perpendiculars. pm and qn are perpendicular to x axis. OM equal to x1 and PM equal to fx1. ON is equal to x2 and QN is equal to fx2. Now compare the coordinates of point P and point Q. Clearly x1 is less than x2. x1 is less than x2. यानी दोनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट पॉइंट Q के x कोऑर्डिनेट से क्या है, लेस देन है. देन corresponding y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is less than corresponding y coordinate of point Q. Means x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2. Definition 1. A function f of x is said to be strictly increasing function on open interval a comma b if x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2 for every x1 comma x2 belong to a comma b. Let's do one example. Show that the function given by fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing on R. Since fx is equal to 3x plus 17. Equation number 1. Let x1 comma x2 belong to real number. For every x1 comma x2 belong to real number R. Let x1 is less than x2. अब हमें क्या प्रूव करना है, fx1 is also less than fx2. अब fx1 किसके इक्वल है, fx अगर 3x plus 17 के इक्वल है तो fx1 क्या होगा, 3x1 plus 17 and fx2 3x2 plus 17. तो फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3. So 3x1 is less than 3x2. इन इक्वेशन में हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब नाउ एडिंग 17 ऑन बोथ साइड्स, 3x1 plus 17 is less than 3x2 plus 17. अब बाय इक्वेशन 1 3x1 plus 17 is equal to fx1 is less than 3x2 plus 17 means fx2. तो हमने स्टार्ट कहां से किया था, x1 plus x2 belong to R, वो प्रूव क्या कर दिया, स्टार्ट कहां से किया था हमने, x1 is less than x2, वो प्रूव क्या कर दिया, fx1 is also less than fx2. मीन्स अगर x कोऑर्डिनेट लेस देन है तो कॉरस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, लेस देन होगा. Therefore fx is strictly increasing function. Therefore fx is strictly increasing function. Throughout this chapter मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा SIF, strictly increasing function. Another definition, fx is strictly increasing function on open interval a comma b if the graph y equal to fx moves up as x move to right. जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते हैं देन करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू कर पे वो भी क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज हो रही है. देखो आप क्यों कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है तो y की जो वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. Another definition, fx is strictly increasing function on open interval a comma b if values of fx increase with increase in the value of x.
अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर x की वैल्यू अपन इंक्रीज कर रहे हैं तो जो कर्व है वो क्या हो रहा है, मूव्स अप। Definition 4. A function f of x is said to be strictly increasing function on open interval a comma b if f dash x is greater than 0. Let fx be an increasing function on open interval a comma b. ये स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन देखो कि कर्व क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ अपर की तरफ जा रहा है। Then tangent at any point on this curve makes an acute angle with the positive direction of x axis. It means theta is greater than 0 degree and less than 90 degree. और we all know that in first quadrant tan theta is positive. अगर थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो वैल्यू ऑफ tan थीटा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मीन्स tan थीटा इज ग्रेटर देन 0. Tan theta means slope of line is denoted by small m. So we can write tan theta greater than 0. We can write m greater than 0. Slope also denoted by dy by dx. Slope of tangent at any point. It is also denoted by f dash x. Means if fx is strictly increasing function, then tan theta is greater than 0, m is greater than 0, dy upon dx is greater than 0 and f dash x is greater than 0. Now same question we can do by alternate method, जो भी हमने just definition form में पढ़ा है कि if fx is strictly increasing function then f dash x is greater than 0. Since fx equal to 3x plus 17, equation number 1, differentiating with respect to x. So differentiation of fx, f dash x is equal to 3. Or we all know that 3 is greater than 0. It means for every x belong to real number, f dash x is greater than 0. Therefore, fx is strictly increasing function. Graph of increasing function. Now what is difference between increasing function or strictly increasing function? Just see this graph. जो इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ हो क्या होता है, पहले थोड़ा सा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे भी आपने देखा था कि जो भी कोरोना जो वायरस है बहुत तेजी से बढ़ रहा था, फिर उसके बाद क्या लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, तो थोड़ा क्या उसमें क्या हो गया, थोड़ा कांस्टेंट आ गया, फिर वापस अनलॉक वन हुआ, थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है, फिर बीच में लॉकडाउन लगा रहे हैं, लोग थोड़ा प्रिकॉशन यूज कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो गया, देन वापस तेजी से बढ़ रहा है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका जो ग्राफ है वो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है। देखो आप लेफ्ट से राइट तरफ जा रहा है तो क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब मान लो इसके ऊपर अपन 2 पॉइंट्स लेते हैं प्योर क्यू, x1 fx1 एंड x2 fx2, तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स उनमें क्या रिलेशन है। जैसे स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग में क्या था कि x1 इज लेस देन x2 देन fx1 इज लेस देन fx2। अब यहाँ क्या होता है अपन चेक करते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर pm एंड qn ऑन x एक्सिस, OM is equal to x1 and PM equal to fx1, ON equal to x2 and QN equal to fx2. अब नाउ टेल मी योर ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है हमको कि x1 इज लेस देन x2। अगर x कोऑर्डिनेट लेस देन है तो कॉरस्पॉन्डिंग y ग्रेड कोऑर्डिनेट्स क्या है, ग्रेटर देन है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। So first definition for strictly decreasing function, a function f of x is said to be strictly decreasing function on open interval a comma b if x1 is less than x2 implies fx1 is less than fx2, या वाइस वर्सा उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर x1 x2 से ग्रेटर देन है
तो fx1 fx2 से क्या होगा, लेस देन होगा। मान लो हमने नेम चेंज कर दिया तो मतलब उल्टा हो रहा है इसमें। अगर x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन है तो y कोऑर्डिनेट लेस देन होगा, और अगर x कोऑर्डिनेट लेस देन है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। नाउ अनदर डेफिनेशन, fx is strictly decreasing function on open interval a comma b if the graph y equal to fx moves down, ग्राफ नीचे की ओर आएगा as x move to right। अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो जो कर्व है वो क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। या हम अदर वर्ड में इस तरह से भी बोल सकते हैं कि fx is strictly decreasing function on open interval a comma b if value of fx decrease with increase in the value of x। अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो आप, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। अब ये x की वैल्यू अपन यहां तो आगे लगे तो y की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, लगातार डिक्रीज हो रही। डेफिनेशन 4, a function f of x is said to be a strictly decreasing function on a comma b if f dash x is less than 0। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो ग्राफ क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, लेफ्ट से राइट। ये इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। देन टेंजेंट एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होगा, dy बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स। एंड दिस टेंजेंट मेक्स एन ऑब्ट्यूस एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। Tangent at any point on the curve will make an obtuse angle with the positive direction of x-axis. Means theta lies between 90 to 180 degree. In second quadrant, tan theta is negative. अब tan theta means m is less than 0. Means dy upon dx is less than 0. Means f dash x is less than 0. ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा है, आपने उस बार ऑब्जर्व किया होगा, जिन लोगों की एज काफी हो जाती है, कुछ लोग बीमार रहते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है उनको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, काफी दिनों तक बीमार रहते हैं, कम वीक हो जाते हैं, तेजी से क्या होता है एकदम उनकी वो डिक्रीज होने लग जाती है उनकी बॉडी। फिर हम ट्रीटमेंट कराते हैं उनका और थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाते हैं। फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है, फिर से वो थोड़ा बीमार होने लग जाते हैं, फिर हम थोड़ा ट्रीटमेंट कराते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, और देन क्या होता है फिर, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। टर्निंग पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है। कभी आप घूमने फिरने गए हिल स्टेशन पे तो आपने अपने देखोगे जो रोड किस तरह से होता है, एकदम काफी टर्न होता है वहां पे। अब वाई वी से टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे देखो टर्न हो रहा है, डेट्स वी से टर्निंग पॉइंट। अब वाई वी से स्टेशनरी पॉइंट, अगर हम वहां पे कोई व्हीकल चला रहे हैं, गाड़ी जा रहे हैं, तो जैसे टर्न आता है हम अपनी गाड़ी क्या है स्पीड थोड़ी स्लो कर लेते हैं। मान लो हमारी स्पीड अगर 60 है तो हम ऐसे 60 की स्पीड से टर्न करेंगे, हम स्पीड अपनी क्या कर लेते स्लो कर लेते हैं, इसलिए बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। और वाई वी से क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर हम स्पीड कम नहीं करें तो क्या होगा, तेजी से हमारी गाड़ी बाहर निकल जाएगी, यानी खाई में गिर जाएगी, तो क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब नाउ टेल मी योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम A1 to A6। The above graph shows that fx is neither strictly increasing nor decreasing on A1 to A6। अब A1 से लेके A6 में कई भी फंक्शन क्या है, यहां से आता है क्या, इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है, देन इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग। मीन्स A1 to A6 neither strictly increasing nor strictly decreasing, but in sub intervals A1 to A2, A3 to A4 and A5 to A6 it is strictly increasing function, and A2 to A3, A4 to A5 are strictly decreasing, and the points
A2, A3, A4, A5, A2, A3, A4, A5 are called as turning points, and at these turning points tangent is parallel to x-axis. इन पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, मान लो जो कर्व की इक्वेशन वो आपकी है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका जो स्लोप है वो क्या होगा, dy बाय डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स. अब जो टेंजेंट वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो. So if tangent is parallel to x axis then f dash x equal to 0. तो जब भी हमें किसी क्वेश्चन में अगर टर्निंग पॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड पुट इक्वल टू 0, so we get turning points. In next lecture we'll discuss problem based on strictly increasing and strictly decreasing function. Thank you, have a nice day.